Good evening. Yeah, thankfully you can see me. It took some time. Yeah. So we have the participants here. Should we wait for a few more people to join or should I start? Ranjita ji? Okay. So, first and foremost, I am so thankful to dear Ranjita ji, RN Talks, to have invited me for this. It is always nice to be associated with the people who are in the creative world. So it's really nice. I can see Leksha Seni here. Okay, one of the participant. I think Shama ma'am is the mother. Good. So once again, I thank everyone and let's just talk a bit. Okay, I'll start with something I wrote about stories. Yeah. मुझसे चलकर तुम तक पहुंची, मेरे दिल की थी अब तेरी हुई, कभी तूने कही मैंने सुनी, मैंने कही तूने सुनी, अलग अलग चले और ये हमें एक सफर में जोड़ती चली गई, कुछ तेरी कुछ मेरी जुबानी, कुछ तेरी कुछ मेरी जुबानी, ऐसे ही बन गई एक कहानी. So when we talk about the stories, yeah, so many things which are there hidden in the stories. एक स्टोरी कितनों को सुनने में मिलती है, कितने लोग उसे सुनते हैं, लेकिन हर कोई उसमें से कुछ अलग ही लेके जाता है. Right? Okay, so I can see Tarveen here, the participant, Kashika, Kanishka here, Kanisha here. Wonderful. The participants are still joining. That's nice. So I congratulate all of you who have joined this, who are part of this storytelling, National Storytelling Festival, the competition. And I would just say that stories, they come out from your heart. And you always tell the story which is close to your heart. So just see that when you narrate a story, you make it your own. उसे अपना बना ले. Right? See, Steven Spielberg, we all know him. He said, in a good storytelling, you can get everybody, you can just get everybody to the same emotion at the same time. That is, you may get everyone clap together, everyone be afraid at the same time, and then everybody laughs sometime, the same time, the very same time. Right? That is the beauty of the story. It connects everyone. Right? So I can see Shireen here also. So first, let me just talk about a few points. Since you are going to face a big competition, so you are going to make your own videos. So while making those videos, while telling the stories, a few points, and then you can ask your queries, your questions. So first and foremost, just remember, as here you are not sharing your original stories, so do give the credit to the writer. वो स्टोरी आप शेयर कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको कुछ मिला, आप उससे कनेक्ट हुए. तो कोशिश कि आप ज़रूर राइटर का नाम शेयर करें, और अगर आप नहीं जानते राइटर कौन है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें. राइट? देन व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, रिमेंबर दैट द एम्बियंस, जहाँ आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो अब आप वीडियो बना रहे हैं, दैट प्लेस शुड बी वेल लिट. देन यू हैव टू सी दैट आपके ऊपर लाइट अच्छे से आ रही है, आपके एक्सप्रेशंस हर किसी तक पहुंच पा रहे हैं. योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस इज प्रोजेक्टेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. राइट?
And definitely voice modulation plays a very, very important role here. Now you may choose a story of any flavor. जो भी फ्लेवर आप चाहते हैं, चाहे आप वो you want to take maybe a जातक टेल, जातक का कोई आप कहानी लेना चाह रहे हो, या आप कोई heroism की कहानी ले रहे हो, then maybe a story, some folk tale you want to narrate, वो आपकी अपनी चॉइस है. लेकिन स्टोरी हमेशा वो सुनाए जो आपको बहुत पसंद है. और जब आप स्टोरी सुनाए तो वो किसी और को आपने कॉपी किया, उसके स्टाइल में आप सुना रहे हैं, तो वो कभी दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगी. So to just meet that distance, you have to make that connect through your expressions, through your voice modulation. That is very, very important. And obviously, when we talk about the vocabulary, अब छोटे बच्चे हैं, वो बहुत भारी वर्ड्स ना उठाएं, उसमें आप फंस के रह जाएंगे और जो सुनेंगे उन्हें भी वो मजा नहीं आएगा. So pick up the words which are easily understandable, right? जिससे हम easily relate कर पाए. और आपको rules तो पता ही है. It should be like not more than 5 to 7 minutes. उसके बीच में आपकी स्टोरी रहे. हाँ, अगर आपकी स्टोरी बहुत कैप्टिवेटिंग है और कहीं ना कहीं एक मिनट कुछ 30 सेकेंड ज़्यादा हो जाता है, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट देन ट्राई टू स्टिक, अपना स्ट्रक्चर्ड वे में आप चलें, जिससे कि आपका 5 to 7 मिनट्स में कवर हो जाए, राइट? हाँ, छोटे बच्चों के लिए डेफिनेटली उनकी स्टोरी बहुत लंबी वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. वो स्टोरी उनकी 2.5 से 3 मिनट तक हो, राइट? सो वी डोंट वांट देम टू गेट एग्जॉस्टेड. ये एक कंपटीशन है, लेकिन इसको आपने कैसे लेना है कि आपके वो स्टोरी इट्स ये भावनाएं हैं जो आपको व्यक्त करनी है, और भावनाओं की कोई जजमेंट नहीं हो सकती, राइट? सो जो भी बोलें दिल से बोलें, राइट? एंड जस्ट कनेक्ट टू द स्टोरी, फील इट विद इन एंड देन यू नरेट, राइट? जैसे स्टोरीज कई बार आप पोएम्स में से भी उठा सकते हैं. कोई पोएम जो आपको बहुत कोई ऐसी कविता हो जो आप में जोश भर देती हो, उसी को आप एक स्टोरी फॉर्म में ला सकते हैं. देयर इज दिस पोएम कॉल्ड द इट्स नेम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. तो उसमें से आप पूरी एक कहानी बना सकते हैं, राइट? उसको एक कहानी के फॉर्म में सुना सकते हैं. नाउ सी, इट इज वेरी एप्टली सेड बाय द फेमस ऑथर J.K. Rowling, no story lives unless someone wants to listen. दूसरे सुनेंगे, वो उनमें वो मन में वो इच्छा आनी चाहिए कि मुझे ये स्टोरी इतनी पसंद आई कि मैं औरों को सुनाऊं. तो आप उसको जब पूरी तरह एंजॉय करके सुनाएंगे, यू विल लिव दैट स्टोरी, एंड देन दैट स्टोरी इट ऑटोमेटिकली लिव्स, बिकॉज देन इट ट्रेवल्स. द स्टोरीज वी लव बेस्ट do live in us forever. So try to always share the stories with which you are impressed and you have made it your own, जिन्हें आपने अपनी बना ली हो, right? So these were a few tips, and I can share few more, but if in case you have any queries, well, I'm looking forward to it. कोई भी query है, कुछ पूछना चाहें आप तो एक कॉन्फिडेंस के साथ सुनाइए स्टोरी. वी आर वेटिंग टू सी योर वीडियोज, चाहे वो छोटे बच्चे हो, टीनेजर्स हो, राइट, या ग्रोन अप्स हो. तो कहानी ऐसी हो कि बस जजमेंट करना ही मुश्किल हो जाए. वैसे तो कहानियां जज करने के लिए नहीं होती, जैसे मैंने कहा, लेकिन डेफिनेटली ऐसे प्लेटफॉर्म में, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है RN टॉक से, तो जब हम लिखते हैं, जब हम कंपटीशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना 100% देते हैं, अपना 100% देते हैं. इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा दें, उसमें आए. एंड प्लीज लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए, राइट? एंड अपने रिकॉर्डिंग्स करिए. एंड डू वन थिंग, जो आप पहन रहे हैं वो भी आप अच्छे से एक डिसीजन लीजिए कि आपने क्या पहनना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन, आपकी स्टोरी के साथ वो वाइब्रेशंस उसके मैच होने चाहिए. आप बहुत कुछ कह जाते हैं अपने वाइब्रेशन से, आपकी प्रेजेंस बोलनी चाहिए, राइट? सो चलिए, जब तक कुछ सवाल आते हैं, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक कहानी आपके को सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है.
सो ये स्टोरी है, ये कहानी है एक मूर्तिकार की। एक ऐसा मूर्तिकार जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसके जहन में आया कि कुछ एक ऐसी कहानी लिखूं, एक ऐसी मैं मूर्ति बनाऊं। मूर्ति भी एक कहानी, वो एक कहानी में बदल सकती है, तो कुछ ऐसा बनाऊं मैं कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। दिन रात मेहनत करी उस मूर्तिकार ने और एक बहुत ही भव्य, एक विशाल मूर्ति बनाई एक देवी की। संगे मरमर को तराश कर उसने जैसे उसमें जान डाल दी हो। दूर दूर तक से लोग उस मूर्ति को देखने आने लगे। एकदम सफेद, उसका एक एक भाव हर दिल तक पहुंचता था। उस मूर्ति की आंखों में वो चमक थी कि कोई निराश होके भी वहां पहुंचे तो आशा लेके वापस जाए। और वो मुस्कान तो ऐसी थी उस मूर्ति के चेहरे पर कि जैसे जीवन से एक नया प्रेम, एक बार फिर हम अपने जीवन से प्यार करने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता था बस देखता ही रह जाता था, वहां से हिलना ही नहीं चाहता था। अब इस बात की खबर उस राज्य के राजा तक पहुंची, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं भी जाकर उस मूर्ति को देखूं। और वो उस मूर्ति को देखने पहुंचे। मूर्ति को देखते ही राजा बस उससे अपने नजरें हटा ही नहीं पाए। बहुत देर तक खड़े उस मूर्ति को निहारते रहे, जैसे उनकी सालों की थकान, जो भी बोझ उनके सर पे था, सब कुछ हल्का हो गया और उसे देख के वो कहीं खो गए। और उनके मन में यह ख्याल आया कि मुझे इस मूर्तिकार से मिलना चाहिए। कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि मूर्तिकार वहीं पास में है। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वो मूर्तिकार एक और मूर्ति बना रहा है। और वो मूर्ति, जब वो पास गए तो देखा कि वो हूबहू वही मूर्ति बना रहा है जो उसने बनाई हुई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो राजा हैरान रह गए। वो उसके पास गए और बोले, भाई ये मूर्ति तो तुमने बनाई है, इसे फिर से क्यों बना रहे हो? इतनी खूबसूरत मूर्ति है, अगर बनाना ही था, इतनी मेहनत करनी थी, कुछ नया बनाते। तो उस मूर्तिकार ने उनकी तरफ देखा और कहा, राजन, आपको ये मूर्ति पसंद आई, सबको अच्छी लग रही है ये मूर्ति, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन इस मूर्ति में एक कमी है। राजन जोर जोर से हंसने लगे, कह रहे, क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसी मूर्ति तो आज तक नहीं देखी, इसमें कोई कमी कहाँ है भला? तब वो मूर्तिकार बोला, जब मैं ये मूर्ति तराश रहा था, उस वक्त इसके नाक को जब मैं तराशने की कोशिश में था, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ हटा और छेने पे मेरा हथौड़ी थोड़ा जोर से लगी और वहां एक छोटा सा एक बाल का निशान आ गया, एक लकीर आ गई। तो राजन हैरान रह गए, बोले, इतनी बड़ी ये मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति, और इतनी दूर से कहाँ दिख रहा है वो निशान? कोई भी नहीं बता सकता कि वहां कोई एक निशान है, तो तुम क्यों फिर से वही बना रहे हो? तब वो मूर्तिकार बोला, राजन, मैंने मूर्ति बनाई है, इसमें गलती मुझसे हुई है। कहाँ गलती हुई है वो किसी को पता चले ना चले, मुझे पता है। राइट? सो आई लीव इट ऑन यू। Yeah. Excellence. To some extent, yes. We all should strive to move towards excellence. But जब बात कहानी की होती है तो जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उनसे कहूंगी, इस बात से कभी बोलते हुए, अपनी कहानी बताते हुए घबरा मत जाना
कि मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ रह गया। सामने वाले को नहीं पता कि तुमने उस कहानी के कौन से पार्ट में अपना क्या ऐड किया है, राइट? सो बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी कहानी बोलो, बिंदास, दैट इज द वर्ड, राइट? एंड इट इज फॉर एवरीवन। भावनाओं की कहानियां हैं, कहानियों में भावनाएं हैं, उन्हें बहने दो। शब्दों के जाल में बहुत नहीं फंसना है। एक बार जब आप नरेट करना आप शुरू कर दें, बताना शुरू करें, तो सहज हो जाए, राइट? सो ओके, रंजीता जी इज हियर, हेलो, सो नाइस. Okay, you want us to give some tips to make a video in English language. Okay, yeah, language is not a barrier. आप जो भी कहानी बोलें, बस आप ये देखें कि जब आप जो भी वर्ड्स चूज कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो उसमें एक कंफ्यूजन नहीं आए कहीं, एक क्लैरिटी के साथ आप बोलें, राइट? Any other questions, queries? Ma'am, I want to ask that to give some credit to the author. Can we tell some lines about the author after the introduction? Yes, why not? That would be wonderful. But then just remember there is a time limit. So just don't go deep into it. Just a brief introduction. And then you can carry with your storytelling. Right? Any other question? So, we are just waiting for your recordings, you know. कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है, और इस कहानियों की दुनिया में तो सच में बहुत कुछ। आप खुद सोचें कि आपको कौन सी कहानी है जो याद रहती है, कौन सी मूवीज हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, जिसमें कहीं कुछ ऐसा था जो आपके फीलिंग्स के साथ रिलेट कर गया। तो आप भी कुछ ऐसी ही कहानी ढूंढें। Yeah, now Shweta ji is asking, ma'am, I wanted to ask that it is necessary to tell the moral of the story. Well, here I would say one thing, that I would not totally disagree to this, that it's like depends on the age group also. Like I'm in a school, I am a vice principal in a school. We keep on telling stories to the children, different age groups. So I feel that when it depends on कौन से एज ग्रुप आपका टारगेट है। कई बार आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना रहे हैं और उसके पीछे आपका भी एक मकसद है कि आज आप उन्हें कोई लाइफ स्किल डेवलप उनमें करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर द मॉरल, राइट? बट एज यू गो टूवर्ड्स द एडल्ट स्टोरी टेलिंग, बड़ों की अगर स्टोरीज हैं तो आप ओपन एंडेड भी छोड़ सकते हैं। यू नीड नॉट गिव द मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिकॉज जिस भाव से आपने सुनाई, जिस भाव से वो लिखी गई थी, जो सुन रहा है वो शायद उसके बियॉन्ड कहीं पहुंचे। सो इट्स ओके टू शेयर द मॉरल, इट्स ऑल्सो ओके इफ यू डोंट विश टू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, few more questions. Every age group will have 3 winners. Yes, right. Everyone is a winner. बस अपना 100% दीजिए। Yeah. Any other query? So for video, whether it is Hindi or English or it's in English, as the question is being asked, I feel it's like the basic things which will go with every, whichever story you choose on to, and just go ahead with it. पहले आप 1-2 बार ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करें, वीडियोस बनाएं, and then go for the final video. But again, I would say don't wait for the last moment. We are all excited to see your videos. Yeah. Yes, about the props, well, very clearly you all are aware of it, and I would also mention it here. Props के कोई marks नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है प्रॉप्स यूज करने में और आपको लगता है कि आपकी स्टोरी पे में इफेक्टिवनेस आएगी विद द यूज ऑफ द प्रॉप्स, वेल यू मे गो हेड, डेफिनेटली यू कैन यूज द प्रॉप्स, बट डोंट यूज प्रॉप्स जस्ट बिकॉज यू वांट टू यूज इट। अपनी स्टोरी को हैवी मत कर दीजिए।
आई फील एक स्टोरी टेलर अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से, वेल यू हैव इनफ प्रॉप्स विद यू. So I think I have tried to answer to the queries. Any other query? Dalveer ji? About the author's introduction I just told. Yeah, a bit of it is always welcome. Anything else? So, I'll take your leave now. Once again, I thank the RN Talks group, Ranjita ji, for giving me this opportunity. Editing of the video, well, a question again comes up. Instead of using the props, well, yes, you can. How to show horror story background? Well asked. So for this horror story background, again, light is what is required, because you are going to, obviously, it should be clear, because the ones who are watching it, एक dullness, एक gloominess नहीं होना चाहिए. But yes, what you can do is, I can suggest you one thing, that you start with maybe some darkness, some props which you want to, use to make that ambience deep, dark, right, with the depth, but soon switch over. That is, don't stay there. You may have to change it, because throughout, then that impact will not be there. That interest will not be there, right? We have to leave the audience, the people who are listening to your story, with that interest. So all the time, then what happens? They get distracted. They'll be just looking at the background and thinking about what next. Though that what next factor should be there in the horror story, but then let's not put it too much into it, right? So that's it. Wonderful interacting. Thank you once again. Just keep trying, keep doing, and I would end with this. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So for us, everyone who is participating is a winner. Thank you. Thanks, Sita.